Hello and welcome back. Today we are going to study matrices. What is a matrix? Matrix basically represent collection of numbers arranged in an order of rows and columns. And uh, columns, it is necessary to enclose the elements of a matrix in parentheses or brackets. Normally a matrix with 9 elements is shown just like we have on the picture on the screen. Normally when a matrix is written, it is written in the form of like 3 into 2 or 4 into 5. So whenever we say 3 into 2 matrix, that means that matrix will be having 3 rows and 2 columns. If I say 4 into 5 matrix, that means that matrix is having 4 rows and 5 columns. So in general, you can say an n by m matrix will be having n rows and m columns. So first one, whichever comes as rows, and the second one is columns. The matrix has 3 rows and 3 columns. Each matrix can be referred to by its row and column number. For example, A23 is 6. Yes, to like the name of this matrix, if supposedly the name of this matrix is, I'll take some different name, say C. I take the name of this matrix as C. So what is C12? C12 will be C first row second column. What is first row second column? First row second column, that's 2. So C12 is 2. What is C33? C33 is third row third column, that is 9. What is C23? It is second row third column, that is 6. Okay, so this is it, how it is done. It's very easy. Now next, order of a matrix. The order of a matrix is defined in terms of its numbers of rows and columns. So order of a matrix is number of rows into number of columns. So it's a 3 by 3 matrix is the order of this matrix. What is the transpose of a matrix? Transpose of a matrix is just obtained by interchanging the rows with columns and the columns with rows. So if I have a say A equals to Aij m into n matrix, then At is Bij, such that your rows have now become columns and all the columns have now become the rows. Properties of transpose of a matrix. So if you do a transpose of a matrix and then again do transpose of that matrix, then you get the original matrix. If you have a matrix say A, another matrix say B, and then you add these two matrices A plus B, and then you take the transpose, then it is similarly like A ka transpose plus B into transpose matrix. It is same. Now AB matrix ka transpose will be B transpose into A transpose. So it's one and the same thing. Singular and non-singular matrix. A square matrix is said to be singular matrix if its determinant is 0. That is, उसका ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 निकलना चाहिए. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी नॉन सिंगुलर if its determinant is non-zero. Some properties of these matrices are like A plus B is equal to B plus A, commutative property. These properties I have taken while teaching you the laws of set theory, and the same laws exist everywhere. The associative law, brackets can be shifted, and if the sign is same provided. AB and BA not commutative. Here multiplication is not commutative, and that you can understand when I will teach you कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल्स होते हैं. जब ये बताया जाएगा तब आप समझोगे कि क्यों ऐसा कहा गया है कि A इंटू बी इज़ नॉट B इंटू टी, B इंटू A. दैट इज़ जस्ट बिकॉज आई विल शो यू समथिंग. सी, एक मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई सिर्फ तब कर सकते हैं. आई डू हैव सम लिटिल, आई वांट स्पेस, ब्लैंक स्पेस डू आई हैव. हियर आई कैन डू. ये एक मैट्रिक्स है जो 3 by 3 है और 3 by 3 मैट्रिक्स है. एक मैट्रिक्स होता, सपोज 2 1 6 2 4 5. ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, यानी 3 by 2 मैट्रिक्स है. दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये कैसे डिसाइड किया जाता है? ये ऐसे डिसाइड किया जाता है कि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो को इक्वल होने चाहिए. जैसे कि यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स सेम तो नहीं है, दोनों के ऑर्डर अलग है. पहला 3 by 3 है, दूसरा 3 by 2 है, बट जस्ट बिकॉज पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 3 रो है, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हो सकता है 2 into
2 × 2, एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 × 3, तो अगेन इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये और ये सेम है। पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा वो इस फॉर्म में निकलेगा, यानी वो 2/3 निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इफ़ आई इंटरचेंज, अब सपोज ये मैट्रिक्स की बात करें जो हमने अभी लिया था, ये 2/2 था, ये 2/3 था, ये ए मैट्रिक्स हुआ, ये बी मैट्रिक्स हुआ। जस्ट अ मिनट, एक 2/3 मैट्रिक्स है, एक 3/2 मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3/3 लेते हैं। बट इफ़ इसको पहले लिख दे और इसको बाद में, तो क्या होगा, पहला वाला 3/2 हो जाएगा और दूसरा वाला 3/3 हो जाएगा और दूसरा वाला 2/3 हो जाएगा। अब इसके रो और इसके कॉलम और इसके रो सेम हो रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। और हम मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो को इक्वल हो। तो कीपिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, matrix multiplication is not commutative. I hope you have now understood. Then associative for multiplication is possible and distributive is also possible. ये properties same hold same everywhere. Square matrix रोज एंड कॉलम शुड बी सेम, यानी 3 रो तो 3 कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम, तो ऐसे मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दे आर स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ओरिजिन, यानी उसका ट्रांसपोज भी इक्वल होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द ट्रांसपोज. ट्रांसपोज अगेन क्या होता है, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, जो रो है वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम है वो रो. ठीक है, तो एनी मैट्रिक्स, ये तो फिलहाल मैंने ट्रांसपोज बताया आपको कि ये रो को कॉलम बना देना पड़ता है और कॉलम्स को रो बना देना पड़ता है. ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि ट्रांसपोज सेम निकलता है. जैसे कि 1 2 1 2, अब इसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो वो क्या निकलेगा, सॉरी इसका ट्रांसपोज सेम नहीं निकलेगा. एक 1 2, तो इट विल बिकम 1 2, एंड इफ आई राइट इट एज 1 2 1 2, तो इट्स 1 1 1 1. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुड बी समथिंग लाइक दिस. देखो, ये है एक मैट्रिक्स, आई राइट अ मैट्रिक्स यहाँ पे. ये देखो, ये क्या लिखा है मैंने, 1 2 3 2 3 4 5 5 6. अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे. मैं लिखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए इसका ट्रांसपोज. दिस कलर इज नॉट वेरी गुड. ठीक है, तो पहला जो रो था वो पहला कॉलम बन गया, सेकंड जो रो था वो सेकंड कॉलम बन गया और थर्ड जो रो था वो थर्ड कॉलम बन गया. ठीक है, एंड इट इज सेम बिकॉज ये मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ट्रांसपोज इक्वल्स इट्स नेगेटिव, उसके नेगेटिव को इक्वल करता है. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर the diagonal in which the entries outside the main diagonal are all 0. तो जो भी डायगोनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 होते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल आर वंस एंड ऑल द एलिमेंट्स आर 0. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटन एज आई. ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल अगर ए इंटू ट्रांसपोज इज A विच इज आई. ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे. आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइंग एनी मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ एंड यू आर गेटिंग द सेम. So these are the different types of matrices. I have also told you about the multiplication. Rest is inverse, properties of inverse, which is A inverse का inverse A ही होगा, AB inverse will be B inverse into A inverse. And to remember only one thing is very very important यहाँ पे, वो ये है कि मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, कि
A into B will never be equal to B into A. रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीप्लिकेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स यही है कि रो इंटू कॉलम फॉर्म में हम ऑर्डर लिखते हैं किसी भी मैट्रिक्स का. तो जब भी हम दो मैट्राइसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करना है आपको दो मैट्राइसेस को जो R इंटू सी फॉर्म में होते हैं. तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है, सेकेंड वाले का जो फर्स्ट वाले का कॉलम है वो सेकेंड वाले के रो को इक्वल होने चाहिए. और फाइनल जो मैट्रिक्स रिजल्टेंट होता है वो इस फॉर्म में आता है. मैं इसे अलग अलग कलर्स से आपके लिए इसको यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ कि R इंटू सी एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई किया गया अगेन R इंटू सी से. तो ये काय के लिए है और ये काय के लिए है, ये भी लिख देते हैं. ये ए मैट्रिक्स को बोला मैंने R इंटू सी, ये बी मैट्रिक्स. क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि फर्स्ट वाले के कॉलम सेकेंड वाले के रो को इक्वल होने चाहिए. और अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो रहेगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? वो पहले वाले के रो और दूसरे वाले कॉलम को इक्वल करेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस देन यू अंडरस्टैंड कि ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स एंड यू कैन नॉट राइट ए इनवर्स पहले और बी इनवर्स बाद में. तो बाकी कुछ चीज़ें हैं जैसे मैट्रिक्स एडिशन एंड ऑल, दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल. इफ़ यू वांट टू ऐड टू मैट्रिक्स, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल दैट स्टेट्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. लाइक ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8. जब भी मैट्रिक्स एडिशन होगा तो एक चीज़ याद रखना, दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम रहने चाहिए तो ये मैट्रिक्स एडिशन हो सकता है. और आप इसका रिजल्ट देखेंगे वो कुछ ऐसा आएगा 1 + 5 6 2 + 6 8 3 + 7 10 and 4 + 8 is 12. Matrix addition is very very simple. So thank you so much. Meet you in next session. Okay, bye.